मोबाइल साइलेंट कर लीजिएगा भाई, रिकॉर्डिंग में नहीं तो आ जाता है। Good morning to all teachers, respected principal sir, vice principal sirs, and my colleagues. Today is going to an interesting topic, that is happy teacher creates happy classroom. This topic is delivered by HOD of Computer of Class Right Saraswati Vidya Mandir, Mr. Neeraj Kumar. As the name implies, it is a name of a lotus, that means a flower. Just like flower, he is doing his work very well. He always appreciate the teachers to do work, and also suggest to teachers to helping the other topics also. And I say that if a school is running, then a hand behind this school is one of him also. We are seeing that how can be time management we can do, but through them also. I just want to listen to his sweet voice for this topic, so I am calling Mr. Neeraj Kumar sir. First of all, look at me, how I look. And what is the expression of our face? Smiling face. Some teacher said has smiling, some teacher said happy. So some say awesome also. Tell me. इस प्रकार बहुत दिनों के बाद जब हम क्लासरूम में जाते हैं और बच्चों को देखकर मुस्कुराते हैं, तो बच्चे भी देखकर खुश हो जाते हैं। मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसी तरह आपका ये फेस लग रहा है। Yes, Munna sir, tell me. What a beautiful personality. Yes. I think that Uma Shankar sir also think that some point. He wants to add some adjective. I agree with This is right. So I think that if there the topic is written on the board, if the topic is not written on the board, then you guess according to my expression. Yes, you are right. Or my topic is happy teachers creates happy classroom. So it is our duty when we enter in the classroom, then we feel happy. We go in the classroom with a smiley face, because the faces shows the everything. Some we can also heard that morning shows the days. Morning shows the days. Yeah, this is right. According to me, I think that this is right point. सुबह से ही हम लोग का शाम का पता चल जाता है ना. और उसी तरह से जब हम लोग when we enter in the class, our face is smiley, we have not any kind of a stress, then the students are also happy. We know it very well that there are different types of stress in our mind, because our life is so busy. There is a busy schedule in our life. We all are here, but somebody writes something, somebody do something. This is right, because there is a lot of work in our life. Then the work when begins, then a lot of stress also in our mind. Some are here, but the mind is here and where, because we have different types of work. So don't, when we enter in the school or in the classroom, forget your stress. Only concentrate the mind on the classroom, because when we are happy, then the students also happy. They laugh and they gain the knowledge in a beautiful way.
Look at these pictures. All the students are happy, and the teachers are also teaches him with a different style. What's it? Happy classroom. To create a happiness in the classroom, it is our duty. जब हम लोग स्कूल में घुसते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क हमारे पास रहता है. जब हम लोग क्लास में भी घुसते हैं तो ये हमारा ड्यूटी है कि हम लोग बच्चों को जो है हैप्पी क्रिएट करें. क्योंकि जब हमारा माहौल, इफ़ आवर एटमोसफियर इज़ हैप्पी, देन द स्टूडेंट्स फील हैप्पी एंड दे अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स इन ए बेटर और इन ए प्रॉपर वे. So look at this. Creating a happy classroom is not just about smiling every day. This is the right. हम लोग को ऐसा नहीं कि हमेशा हंसते रहना चाहिए. अगर हम लोग हमेशा हंसते रहेंगे तो लोगों को पागल कह देंगे, कहेंगे चाहो काके में. लेकिन हाँ, जब हम लोग इंटर करते हैं, हर एक बात पर नहीं हंसना है. लेकिन जब कुछ उस तरह का बात हो, थोड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा भी हो, कभी कभी किसी का चेहरा भी उसी तरह से रहता है, लगता है कि वो हंस भी रहा है तो लगेगा नहीं हंस रहा है ना. तो लेकिन फिर भी अपने आप को कोशिश करना चाहिए. किसी किसी का फेस भी वैसा होता है कि वो नहीं भी हंस रहा तो लग रहा है कि हंस रहा है. तो उससे क्या होता है कि कभी कभी जब हम लोग अत्यधिक हंस जाते हैं तो क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर जो है क्लास का ख़राब हो जाता है ना. फिर तब हमको स्टूडेंट्स उतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं. इसलिए जब ज़रूरत हो तो ही हंसना है. लेकिन जो हमारा कैंपस हो, स्ट्रेस फ्री कैंपस इन द क्लासरूम, because we are the honor of this class. When we enter in the class, in any class, in class 3 or class 4 or class 5, then we are the honor of the class. In the earlier, Parnov sir said some important topic that we are the showman. We are the showman of the class. Yes, this is right. Because showman हम लोग हैं. हम लोग जैसा क्रिएट करेंगे, बच्चा वैसा ही हम लोग से एक्सपेक्टेशन करेगा. जैसा हम करेंगे वैसा बच्चा भी हमको करके हमारा नकल को उतारेगा. हम लोग जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का नकल उतारते हैं कि नहीं. व्हेन वी सॉ एनी फिल्म, जब हम लोग कोई फिल्म को देखते हैं तो बाहर से निकलते हैं, सनी देओल अगर गद्दर में कबाड़ा है चापाकल को, तो क्या होगा, हम लोग को भी लगता है कि वो चापाकल कबाड़ते हैं, है ना. और अगर सामने से कोई आदमी मिल जाए कुछ बोल देता है था, तो खींच के दे भी देने का मन करता है, लगता है वी आर द बॉस. तो ये टीनेजर्स में खास करके ज़्यादा होता है. व्हेन वी आर इन द एज ऑफ 13 to 19, Parnov sir said that in his topic, when we are in the age of 13 to 19, then we have a different types of energy. Somebody said that think that I am the boss and nothing is. इसी में एक कोटेशन भी आता है एक फिल्म का. क्योंकि मैं फिल्म कभी कभी देखता हूँ तो ज़्यादातर कोटेशन फिल्म का आ जाता है. लगता है कि साला कभी कभी तो लगता है कि अपन ही भगवान है. एक ये आता है, कभी कभी लगता है इंसान को, है ना. और एक तो पुष्पा वाला तो है ही, तो अपुनिच भगवान, ये दिस इज द कोटेशन ऑफ ए फिल्म. मतलब उसको ऐसा लगता है कि हम ही सब कुछ हैं. टीनेजर्स को इन द एज ऑफ 13 to 19, तो उसको लगता है हम ही सब कुछ हैं, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है. इसलिए हम लोग को हमेशा हंसते नहीं रहना चाहिए. जब हमारा समय आवे उस हिसाब से हम लोगों को काम करना चाहिए. नीड ऑफ हैप्पी क्लासरूम. Why it is important to be happy in the classroom? Why the atmosphere of the classroom we have to create a happiness? Why? Somebody tell, anybody? Vijay sir. Why need of happy classroom? Why it is important to be happy in the classroom? The atmosphere of the classroom. Yes, we need to create a happy classroom. The question is because there are so many students dependent upon us. That was why we need to create a happy classroom. But how we can create a happy classroom? This is the matter to discuss. I suppose nobody is happy because the key of our happiness is in the hand of someone else. Our wife and children are deciding whether this will be happy or not. Yes, this is the right answer. No. Yes. So what can we do in that situation? I suppose the blunder we are making. We have left the keys in someone else's hand. They are deciding whether this will be happy or not. No. We should decide whether they should be happy or not. And they should create on their best
I have got to keep my father, my mother happy, so that I may be happy. So the key must be in your hand. Then everything will be okay, I suppose. Yes. Yes, sir. You tell absolutely right. Key is in our hand. हमारे पास चाबी है कि हम लोग किस प्रकार से हंस सकते हैं और दूसरे को हंसा सकते हैं और अपना एटमॉस्फेयर को हम लोग क्लियर कर सकते हैं। उसी प्रकार क्लास में अगर हम लोग गए, वी आर द टीचर्स, सो हम लोगों को सारा की हम लोग के पास है कि हम लोग किस प्रकार से बच्चे को अपने अनुसार ढालें कि बच्चा हमारा खुश भी रहे और काम भी सही से करे। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे अगर खुश हैं, हम लोग कोई काम उसको बोलेंगे तो तुरंत करेगा, और अगर बच्चा को बोझिल लग रहा है, कभी कभी लगता है कि फलना सर आ रहे हैं, तो माथा नीचे कर देता है। तो पढ़ाई किस में पढ़ाई, या बीच बीच में फिर उसको एक्टिविटी वगैरह के माध्यम से हम लोग चाहें तो क्लासरूम को, अपना एटमॉस्फेयर जो क्लासरूम का उसको अच्छा कर सकते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नीड ऑफ हैप्पी क्लासरूम, क्योंकि अगर हमारा क्लासरूम अच्छा रहेगा तो हमको पढ़ाने में भी आनंद आएगा। क्रिएटिंग ए हैप्पी क्लासरूम environment is a common goal for many teachers. We earlier said that it is our duty to create the happiness in the classroom by the different types of methods. I tell you some important tips. By the help of some tips, we create happiness in the class. शिक्षक एक खुशहाल कक्षा कैसे बना सकता है? हाउ वी क्रिएट ए हैप्पीनेस क्लासरूम? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज, लाइक जब हम लोग क्लास में गए, कुछ हम लोग उसको चुटकुला सुना दिए। सबसे पहले क्लास में गए, योगा करा दिए फर्स्ट ऑफ ऑल। देन अगर लग रहा है कि माहौल मैथ पढ़ के निकला है, तो भाई मैथ साइंस जब पढ़ के निकलता है बच्चा तो थोड़ा सा बोझिल टाइप से लगता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा एक आध चुटकुला सुना देते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं कई लोग सो रहे हैं, एक चुटकुला इसमें हम थोड़ा सा सुनाते हैं, तो देखिएगा फिर हमारा भी क्लास क्या हो जाएगा, थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाएगा। बस ज़्यादा नहीं, 2 मिनट का ही सुनाएंगे, उसके बाद फिर बच्चा अपने जगह पर आ जाएगा। एक व्यक्ति था, एक लड़का था, अभी तो हम लोग जानते हैं सभी लोग चाहता है कि इंग्लिश की पढ़ाई हो, संस्कार आए कि ना आए वो बात की चीज़ है, लेकिन स्कूल ऐसा हो जहाँ पर इंग्लिश हो। आप पढ़ाते या नहीं पढ़ाते, लेकिन बोर्ड में आपको लिखना पड़ेगा, दिस इज़ द इंग्लिश मीडियम स्कूल, द एनवायरनमेंट ऑफ आवर स्कूल इज फुल्ली इंग्लिश, नोबडी टेल्स इन हिंदी, है ना। बच्चा भले सीखे चाहे नहीं सीखे। तो उसी तरह से एक बच्चा था जिसको इंग्लिश पढ़ने का बहुत शौक़ था। क्या करे भाई, बाज़ार में घूमने लगा कि कोई इंग्लिश का टीचर मिल जाए। तो एक टीचर उसको मिल गया। टीचर कैसा मिला, तो टीचर को भी उतना मालूम इंग्लिश पढ़ाने के लिए नहीं आता था, लेकिन को मिल गया तो क्या करे, चलो भाई, बोला हाँ आई एम PhD इन इंग्लिश, सो आई हैव ए मेनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश, चलो आ जाना कल से शाम में। आ गया बेचारा एकदम पूरा टाइट जीन्स उन्स पहन के। इंग्लिश सीखना है भाई, तो इंग्लिश सीखने के लिए भी थोड़ा सा टिप टॉप में रहना ज़रूरी है। उसके माइंड में पैसे से बैठा दिया गया था। टीचर बोला ठीक है, तुमको कोई रास्ता में मिलेगा, देन यू हैव टू से यस सर, आई थिंक बॉडली यस सर। बच्चा खुश गया आगे, टेम्पू वाला जाने लगा, बोला चलना है क्या, बोला यस, चल गया, टेम्पू पर बैठ गया। बगल में एक दुकान था मिठाई वगैरह का, बोला कि मिठाई वगैरह लेना है क्या, मिठाई खाने का, बोला यस, ले लिया मिठाई। अब जैसे गया तो एक ठो फील्ड था, है ना, जैसे धीरज जी हमारे फील्ड में कैसे प्रैक्टिस कराते हैं, तो वहाँ पर क्या था कि एक ठो फिजिकल का टीचर था, मोटा ताजा तंदुरुस्त टाइप से। तो बोला इधर क्या करना है, पहलवानी लड़ना है क्या, बोला यस। भाई फिजिकल टीचर के पास टकराएगा तो क्या होगा, उसको दे दिया पूरा मुकामुकी, पूरा फूल फाल गया बेचारा का, है ना। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं नहीं, टमाटर वगैरह हम लोग रखते हैं और उसके ऊपर कोई चीज़ सब्जी वगैरह रख दी, क्या हो कैसे हालत हो जाता है बेचारा का, उसी तरह से उसका हालत हो गया, पूरा फूल फाल गया। फिर गया दूसरे दिन टीचर का, सर हम तो पिटा गया, आप हमको कैसे पढ़ाएं, बोला अरे बेवकूफ़, नो बोलना, टेल नो इन ए लाउड वॉइस। ठीक है, फिर गया, रास्ता में इसी तरह टेम्पू मिला, क्या करना है भाई, चलना है, नो, ठीक है। आगे गया, फिर रसगुल्ला वगैरह का दुकान, वही स्वीट्स का दुकान था, क्या स्वीट लेना है, बोला नो,
ठीक है, अब आगे फिर चला गया, वही बॉक्सर मिल गया, बोला क्या कल का मार याद है ना, बोला नो, तो बोला स्पीक लाउडली, तो नहीं सुना, बोला नो, फिर धुना गया बेचारा। अब क्या करे, फिर आया, पैर हाथ एकदम पूरा बैंडेज उंडेज करा के, बोला सर हम फिर पिटा गए। तो फिर अच्छा ठीक है, पर बोला थैंक यू, तो बोला ठीक है। फिर उसी तरह से रास्ता में मिला, टेम्पू वाला मिला, बोला क्या चलना है, बोला नो, बोला थैंक यू, अगल बगल हो गया है क्या चलो ठीक है। आगे मिठाई की दुकान वाला बोला मिठाई लेना है, बोला थैंक यू। अरे क्या हो गया इसको भाई, कल तक तो ठीक है था चलो ठीक है भाई। अब फिर गया वहाँ पर, अब उसी तरह से फिजिकल टीचर जो बॉक्सर था बेचारा बहुत उदास था, है ना, मैडम क्या करें भाई। तो बोला कि सोचा भाई कुछ नहीं बोल रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग किसी से ज़्यादा दिन मिल लेते हैं ना, तो कुछ नहीं बोलता तो लगता है हमको कुछ बोलता ना। तो गया तो ऐसे सीना तानते हुए एकदम उसके पास, बोला क्या हुआ, बॉक्सर साहब बहुत उदास है। अरे क्या कहें, मेरी नानी मर गई। बोला हो थैंक यू थैंक यू फिर बेचारा पिटा गया। अब जैसे पिटाया तब से कान पकड़ लिया कि अब हमको इंग्लिश नहीं सीखना है, जैसा हो वैसा ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ वी हैव टू टेल सम टाइप्स ऑफ चुटकुला, वी कैन से दैट जॉक्स टू क्रिएट द क्लासरूम हैप्पीनेस। तो हम लोग जब इंटर करते हैं या थोड़ा सा बोझिल लगे तो हम लोग इस प्रकार से चुटकुला वगैरह सुना देंगे, तो क्या होगा, हमारा क्लासरूम का इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा और बच्चे जो सो फिर से तरोताज़ा हो जाएंगे। तो हम लोगों को क्या है कि पढ़ाने में बहुत आनंद आएगा। तो इस प्रकार से है दैट हाउ टीचर्स मेक द क्लासरूम हैप्पीनेस। तो ये इस प्रकार का एक एग्जाम्पल हुआ, हम लोग चुटकुलों के माध्यम से हम लोग उसको कर सकते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, ये पिक्चर को देखिए, थोड़ा सिंगिंग कर रहा है, तो बच्चा लोग को थोड़ा सिंगिंग में बड़ा आनंद आता है, और जो करेगा वो घर में बताएगा भी, क्या आई प्ले और आई सिंग ए सॉन्ग इन द क्लास, है ना। सीखने जब हम लोग क्लास वगैरह में आते हैं तो क्लास थोड़ा बोझिल हो जाए तो आउटसाइड कभी हम लोग को बच्चों को ले जाकर कुछ चीज़ों को बताना होगा, है ना। वी हैव व्हेन वी टेल समथिंग सम डिफरेंट थिंग्स और वी वॉक इन द गैलरी, तो बच्चा क्या होता है कि थोड़ा सा उसको अच्छा लगता है, बाहर का वातावरण निकलने के बाद उन लोगों को अच्छा लगेगा, और फिर हमारा क्लासरूम फिर हम लोग इंटर जब क्लास में कर देंगे तो वो सही तरीके से फिर से पढ़ना शुरू करेगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट संगीत, म्यूजिक। वी नो इट वेरी वेल दैट म्यूजिक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। विदाउट म्यूजिक आई थिंक दैट आवर लाइफ इज स्पॉइललेस। वी कांट इमेजिन आवर लाइफ, वी कांट इमेजिन आवर लाइफ। संगीत जो है हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होता है, इसलिए अभी हम लोग देखते हैं कि कोई लोग कितना भी पैसा कमा ले, कितना आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर कुछ सेलिब्रिटीज़ आ जाए, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, कोई भी आ जाए, तो भीड़ उसी तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंटरटेन करता है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि संगीत बजाएं, बनाएं, सिखाएं। ऑल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू क्रिएट ए हैप्पी क्लासरूम इन आवर स्कूल। तो समय समय पर हम लोगों को संगीत का भी कुछ लोगों बच्चों को बताना, उसके बारे में बताना, सुनना, है ना। वी हैव ऑल्सो वी इन आवर स्कूल स्मार्ट क्लास इज ऑल्सो अवेलेबल, सो ऑलवेज वी हैव टू सिंग ए म्यूजिक एंड टू टीच द म्यूजिक। Always be positive. This is the right way to success in our life, or to motivate the students. This is our duty to motivate the students, because we see that there are different types of students are in our class. Some were weak, some were intelligent. तो सबको अगर कॉम्बिनेशन लेके चलना है तो हम लोगों को क्या करना होगा? To motivate the students. Always think positive. If we think positive, then we never face any kind of problem in our life. So it is important to be a positive. Don't think the negative things. There are different things are go in our life, but ignore the negative things. Always try to be positive, or always try to retain the positive words.
हमारे जीवन में कई तरह की चीज़ें होती हैं। हमारे अगर आज हम लोगों के पास अगर हम लोग काम करने गए या घर में गए तो बहुत तरह का नेगेटिव और पॉजिटिव थिंग्स हम लोगों को बोला जाता है। तो अगर हम लोग उसमें पॉजिटिव खोजेंगे, अगर हमको कोई डांट भी दिया तो ट्राई टू नो व्हाट इज़ द पॉजिटिव इन दिस। उस जो हमको डांटा उसमें क्या पॉजिटिव हमारे लिए है, क्यों डांटा भाई, तो क्या होगा कि उसमें हमारा माइंड सही होगा और फिर हम लोग नई ऊर्जा के साथ काम कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों में ट्राई टू टीच द स्टूडेंट इन ए पॉजिटिव वे। अब हम गए और सीधे से जाके हाँ जी पाठ निकालो, बच्चा बोरिल हो जाएगा। अगर कोई बच्चा नहीं भी पढ़ रहा है तो उसको पॉजिटिव चीज़ों को बोलकर हम लोग उसका दिमाग को बढ़ा सकते हैं। तो क्या होगा, बच्चा जल्दी सीखेगा और उस पर हम लोगों का काम भी हम लोगों का हो जाएगा। इसलिए अवॉइड द नेगेटिव थिंग्स, नकारात्मक को दूर करें। जो हमारे अंदर या बच्चों के अंदर में कुछ न कर, हम लोग ही अगर नेगेटिव रहेंगे तो बच्चा भी हमको नेगेटिव में ही लेगा। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव इन आवर लाइफ। छात्रों को प्रोत्साहित करें। यस, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। When somebody do different kinds of things, somebody sing a song or somebody do the different types of things, then we have to appreciate them. Yes, you are good, nice, very good, well done. These types of word when we use against the students, then the students feel happy. हम लोगों को चाहिए कि जब कोई बच्चा को हम लोग कोई चीज़ पूछे, चलो जी जवाब दो, तो क्या होता है, वो जवाब दिया तो उसको थोड़ा सा हम लोग अप्रिसिएट कर दिए, थोड़ा कंधा पर हाथ रख के थपथपा दिए, पीठ थपथपा दिए, उसको बोल दिए यस गुड। तब तक अगर कोई दूसरा चीज़ बोले यस वेल डन, ओके, एक्सीलेंट, मार्वेलस, हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स बोलेंगे तो बच्चा को प्रोत्साहन मिलेगा और बच्चा और भी अच्छा से करेगा और फिर उसका फिर आगे भी परिणाम अच्छा होगा। बच्चा भी पढ़ने में भी अच्छा, तुम कोई अगर बच्चा नहीं भी पढ़ रहा है उसको थोड़ा सा अप्रिसिएट करेंगे कि अरे तुम तो बहुत अच्छा लड़का था, तुम तो बदमाशी नहीं करता था, कैसे इसमें कम नंबर आ गया, अच्छा ठीक है शादी था इसलिए चला गया था। इस टाइप के वर्ड हम लोग उसको, ठीक है नेक्स्ट टाइम तुम अच्छा करना, तुम जब अच्छा करता है तब ना हम लोग को भी अच्छा लगेगा। थोड़ा कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स वी हैव टू यूज इन द क्लासरूम। तो क्या होगा कि उसके ऊपर हम लोग का पॉजिटिव अप्रोच जाएगा और फिर वो बच्चा अच्छा से हम लोगों का बात मानेगा। सो वी हैव टू अप्रिसिएट द स्टूडेंट्स इन डिफरेंट वेज। पुरस्कार, जब हम लोग बच्चा को अच्छा काम करें तो हम लोग पुरस्कार के रूप में जो बोले कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स को तो यूज करना ही है। साथ ही साथ कभी कभी अगर टॉफ़ी रखे हैं, जैसे डीके सर हमारे थे जो कि हमेशा टॉफ़ी रखते थे पैकेट में, कोई बच्चा कुछ अच्छा बोला तो उसको थोड़ा सा एक टॉफ़ी दे दीजिए। इतना बड़ा विद्यालय है तो हमेशा किसी न किसी का तो बर्थडे रहता ही है, तो जैसे बच्चा कुछ बोला देन वी हैव गिव सम वन टॉफ़ी, ओके थैंक यू, गुड, बेटर, बेस्ट, कुछ भी बोलकर उसका प्रोत्साहन को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो उसमें बच्चा बाकी बच्चों में भी जो सो ललक आएगी, खास करके 1 to 5 के बच्चों में ये ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलता है। खुशहाल कक्षा, हैप्पीनेस क्लासरूम। खुशहाल हम अर्लियर में भी आप लोगों को बता चुके हैं कि क्लास को हम लोगों को बोझिल नहीं बनाना है। We have to do different kinds of things like yoga class, music class, कहीं पर कुछ चुटकुला हम सुनाए वो सुना देना है। पढ़ाने में भी कुछ एक्टिंग करके इन द वी सी द दीदी जी ऑफ प्ले ग्रुप डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक सिंगिंग, डांसिंग, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स आर डन बाई हर। अगर वो इस प्रकार से करती है तो बच्चे में खुशी का माहौल है, फिर वही बच्चा हमारे घर में जाता है और वो वही चीज़ करके दिखाता है। और एक है बच्चा को जो हम बताएंगे वही बच्चा उसी प्रकार से करेगा और वो क्या है जल्दी से सीखता है और उसको फिर स्कूल आने में भी मन लगेगा कि चलो ये चीज़ हमको आज फिर से बताया जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि क्लासरूम हमारा सिर्फ हंसी और उत्साह भरा नहीं है, बाकी सारा कुछ उसमें हमारा मिला हुआ रहे, पढ़ाई भी हो, थोड़ा बच्चों को हम लोग कुछ सिखाएं भी, ताकि बच्चा का मेन मकसद क्या है कि टू क्रिएट द हैप्पी क्लासरूम। इफ़ वी हैव ए गुड टीचर्स देन इट इज़ आवर ड्यूटी टू क्रिएट ए हैप्पी क्लासरूम। द एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लास लुक्स
simple and proper. Positive teaching is most important in our life. We all are the teachers, so it is our duty to be a positive. यही हम आपको पहले भी बताए हैं. Why happy teachers? This is the questions. Why happy teachers? कोई इसमें अगर बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं. क्यों? Why happy teachers? तो वही बात शोमैन कि आप शोमैन हैं, आप जैसे हैं वैसे ही आपका क्लासरूम होगा ना. आप खुश हैं तो 40 बच्चे खुश हैं. तो आपकी पर्सनालिटी 40 बच्चे के पर्सनालिटी को निर्धारित कर रही है. एंड दैट वाज व्हाई टीचर्स मस्ट बी है ना. Yes, right sir. Thank you sir. इस बार में पिक्चर भी नहीं लिखी है, वो एक Yes, this is right. Why happy teachers? Personal connection with their students always as their students being recognized for their success. Yes, this is important. This is most important for a class. That first of all the teachers should be happy. ये ज़रूरी है कि टीचर्स हैप्पी होना चाहिए. बिकॉज अर्लियर हम लोग पढ़े भी थे शो मैन. वी आर द शो मैन. हम लोग जैसा प्रोड्यूस करेंगे वैसा ही बच्चा हम लोगों को ध्यान में रखेगा. सो वी रिस्पॉन्स देगा. सो वी आर द शो मैन. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ए टीचर्स. हमारे पास बहुत स्ट्रेस है, पहले भी हम बताए थे, लेकिन उस सबको दूर कर देना है. अभी भी हम लोग के पास स्ट्रेस है, रिजल्ट आने वाला है, कितना कॉपी चेक करना है, तो सबको दूर कर देना. और जहाँ हम लोग क्लास में इंटर करते हैं तो अपने आप को फिर हम लोग को उसी अनुसार फिर ढाल देना है. Towards happy school tips. There are some important tips. In the earlier I said you that I told you some important tips to create a happiness in our class or in our life also, or in the school also. CBLC also said that we have the stress-free campus. We create the stress-free campus. हम लोग का stress-free campus हो ताकि हम लोगों का क्या हो, पढ़ाने में भी अच्छा लगे और बच्चों भी जल्दी से जल्दी अच्छे से सीखे. ये CBSE का भी कहना है कि स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, तो क्लास भी हमारा स्ट्रेस फ्री होना चाहिए. तो ये सबसे पहला, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम. हाउ वी इन्वेस्ट आवर टाइम, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. देयर आर 24 hours फॉर मी ऑल्सो और द अदर पीपुल ऑल्सो, फॉर द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑफ आवर country or in the world. They have also 24 hours only, but this success in his life. But the students or the man who not use his time in a proper way, then he not success in his life. हम लोग बाज़ार में देखते हैं कई लोग इधर से उधर होते रहते हैं. अगर हम लोग वेस्ट करेंगे अपने टाइम को तो हम लोग सक्सेस नहीं होंगे. हम लोग के लिए भी 24 घंटा और जो बड़े लोग हैं उनके लिए भी 24 घंटे, लेकिन वो अपना यूटिलाइज किस प्रकार से करते हैं, हाउ टू मैनेज ही टाइम. This is most important for us. So the topic is investment of time. Invest some time to get to know your students. This is most important. There are different types of students are in our class. So try to evaluate all the students. वो बच्चा कैसा है उसके बारे में जानकारी लेना, खास करके इफ़ वी आर द क्लास टीचर, तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाता है कि हर एक बच्चा का हम लोगों को पोर्टफोलियो बना के रखना है कि वो बच्चा कैसा है, कौन पढ़ने में तेज़ है, कौन खेलने में तेज़ है, कोई क्यों उदास है, कोई आज इतना खुश क्यों है. तो जैसे हम लोग फर्स्ट क्लास में जाते हैं तो उसके पूरा डिटेल्स हम लोगों को लेना. इसलिए कहता है इन्वेस्ट सम टाइम टू गेट टू नो योर स्टूडेंट्स. कुछ समय हम लोगों को अपने स्टूडेंट्स को जानने में लगाना चाहिए. मेक एन एफर्ट टू नो ईच एंड एवरी वन ऑफ योर स्टूडेंट्स. अपने इफ़र्ट के द्वारा, अपने द्वारा कोशिश करना है कि हमारा बच्चा कैसा हो, उसके बारे में हम लोगों को टाइम देना, उसको पूछना, ताकि वो बच्चा अपने आप को ऑड फील नहीं करे.
Not only will this allow a student to feel comfortable in the class, but will also help a teacher build a caring classroom community. Knowing your students will help you understand them better. अगर हम लोग अपने किसी भी स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से जान जाएंगे तो उसको पढ़ाने में भी और उसको हर एक चीज़ बताने में भी हम लोगों को बेटर होगा, आसानी पूर्वक होगा। जैसे हम लोग सेल्फ स्टडी करके अगर जाते हैं क्लास में तो हम लोग अच्छे से पढ़ा लेते हैं, और अगर थोड़ा सेल्फ स्टडी नहीं है तो थोड़ा सा क्या होता है कि हम लोग ढीला सीला पड़ जाते हैं। सो जैसे हम लोग के लिए सेल्फ स्टडी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर्स, तो उसी प्रकार से स्टूडेंट को नो करने में पहले अगर हम लोग स्टूडेंट को जान लेंगे, उसका पोर्टफोलियो बना लेंगे, तो हम लोग क्लास में जब जाएंगे तो हम लोग समझ जाते हैं ये बच्चा कमज़ोर है, ये उसी लेवल से हम लोग उसको बताना शुरू करते हैं। ये बच्चा को थोड़ा सा चुटकुला सुना देंगे तो फिर ये अच्छा से पढ़ेगा। तो ये हम लोग का ड्यूटी है कि हम लोग किस प्रकार करें। तो फर्स्ट हमारा टिप्स, द फर्स्ट टिप्स इज इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, हाउ टू इन्वेस्ट अवर टाइम। सेकेंड वन इज द यूज ह्यूमर। क्लासरूम में अपॉर्चुनिटी देना, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी करने के लिए, तो ये भी हमारा क्या होता है, एक प्रकार का टिप है अपने क्लासरूम को हैप्पीनेस बनाने का। जैसे हम लोग गए, उसको चलो जी एक तो कहानी सुनाओ, तो कोई बच्चा, अरे तुमको तो देखे थे बाज़ार में, तो एक कहानी सुना, तो सुना दिया। कभी कभी उसके एक्सपीरियंस को जाना, गर्मी छुट्टी हो गई, दशहरा छुट्टी हो गया, बच्चे जब आए या हम ही आए, देन वी टेल हिम अबाउट आवर पास्ट, है ना, और उससे भी अपना उसको पूछना, चलो जी कैसा तुम्हारा दशहरा बीता। बच्चा खुशी खुशी बोला हम तो ये खाए वो खाए वो खाए, तो दूसरा बोलेगा आचार्य जी हम तो आइसक्रीम 2 ठो खाए, तो कहेगा हम तो 5 ठो खाए। तो क्या है कि उससे हमारा जब बच्चा जब हमारे क्लासरूम में आएगा तो उसको फिर 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का इस प्रकार का सेशन कर लेंगे तो वो खुश हो जाएगा, और फिर हमारा एटमॉस्फेयर जो है क्लास का अच्छा हो जाएगा। सो ह्यूमर का यूज करना बहुत ज़रूरी है। वॉट एवर सब्जेक्ट यू आर टीचिंग, you can relate it to real world situation to better engage students. Yes, it is important for us to engage the students in the real world. रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसके बारे में बच्चों को इंगेज करना, उसके बारे में बताना कि अभी क्या तत्काल हो रहा है। दिस इज द सेकेंड टिप्स। द थर्ड वन इज द अप्रिशिएट। अर्लियर आई सेड यू दैट ऑलवेज अप्रिशिएट द स्टूडेंट्स। When somebody give the answer correct, then we have to appreciate them like good, very good, okay, better, well done. There are different types of points we are used to appreciate the students. हम लोगों को चाहिए कि बच्चा कोई चीज़ अच्छा करे तो उसको अप्रिशिएट करना। चलो जी ये काम तुम किया बहुत अच्छा, हम तो नहीं जान रहे थे तुम इतना अच्छा कर लेगा, तो बच्चा क्या है कि थोड़ा अच्छा करेगा। खास करके खेल कूद में हम लोग देखते हैं धीरज सर को, कितना कमज़ोर बच्चा को भी देखिए कितना आगे ले गए हैं। तो क्या है ये इनका अप्रिशिएट है, बच्चों को अप्रिशिएट हमेशा करते रहते हैं ये, और इसी चलते हमारे लोग का कई बच्चा भी जो सो अभी नेशनल में भी क्वालिफाई कर गया, कबड्डी वगैरह में सुनते हैं कि इतना आगे बढ़ रहा है। कल भी हमारे स्कूल की बच्ची का जो सो हो सकता है कि नेशनल टीम में जो सो सिलेक्शन हो जाए, उम्मीद काफ़ी है। तो ये अप्रिसिएशन के कारण होता है। जो बच्चा कमज़ोर भी है पहले हम उसको अप्रिसिएट करें, तब उसमें एक अलग ऊर्जा का संचार होता है। टिप्स नंबर 4, गिव चॉइसेस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव द चॉइसेस। अ स्टूडेंट रेयरली गेट ए चांस टू मेक चॉइसेस फॉर देमसेल्व्स। Allowing a student have a say in what or how they will learn is a good way to make them happy. हमेशा चॉइस देना बच्चों को, ताकि चॉइस देने से फिर क्या होगा, चलो जी तुम ये काम करो, चलो तुमको इसमें पसंद है तुम ये काम करो। चॉइस जब हम लोग देंगे, क्वेश्चन पूछने में भी हम लोगों को थोड़ा सा इस प्रकार का चॉइस देना चाहिए। लगता है कि ये बच्चा ये चीज़ का आंसर दे सकता है तो उसको वही चीज़ हम बोलेंगे, तो क्या होगा वो तुरंत खड़ा होकर तुरंत जवाब देगा और फिर उसको अच्छा लगेगा। और जब वो उसको अच्छा लगेगा तो स्वाभाविक है कि पूरा क्लास का भी माहौल अच्छा रहेगा। तो चॉइसेस देना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वन, द फिफ्थ टिप्स इज द अलॉट टाइम फॉर प्ले। वी नो इट वेरी वेल दैट
प्ले इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। खेल हमारे जीवन में कितना उपयोगी है इसको बहुत ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है। हेल्थ इज वेल्थ, दिस कोटेशन इज राइट, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन होता है। तो हम लोग को अगर खेलने के लिए बच्चों को ले जाएंगे, थोड़ा उसका माइंड फ्रेश होगा, सम योगा करा देंगे, कुछ योगा करा देंगे, कुछ खेल करा देंगे, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। कभी कभी शिकायत भी आता है मेरे पास, आचार्य जी हम ये क्लास में अभी तक हमको जो एक बार भी खेल की घंटी नहीं मिली है। तो कभी कभी चाहिए हम लोगों को कि बच्चों को खेल के मैदान में ले जाए, लेकिन हाँ उसमें भी है, उसका टाइम टेबल है। वी हैव टू फॉलो द टाइम टेबल और द रूल रेगुलेशन ऑफ द स्कूल, है ना। रूल रेगुलेशन स्कूल का टाइम टेबल फॉलो करके हम लोगों को ये काम करना है। तो उससे क्या होता है, वो मेंटलिटी हेल्प्स देम टू ग्रो मेंटलिटी, सोशली एंड इमोशनली। हम लोग जब गेम करते हैं, खिलाते हैं बच्चों को, तो मेंटलिटी तो अपना फ्री होता ही है और उसके साथ ही सोशल भी बनता है। खेल खेल के माध्यम से 4, 10, 20 लोग खेलते हैं तो आपस में एक कनेक्शन भी बनता है। बिल्ड ए कनेक्शन इन आवर सोसाइटी, हम लोग सोसाइटी में कनेक्शन भी बना सकते हैं, हमारी पहचान भी बढ़ती है। टिप नंबर 6, गिव स्टूडेंट्स ए ब्रेक। यस, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू गिव द स्टूडेंट्स ए ब्रेक। हम लोगों को क्या है, बीच बीच में ब्रेक भी देना चाहिए। हम लोग देते भी हैं कभी कभी, चलो भाई 1 घंटे ख़त्म हुआ तो 5 मिनट का हम लोग ब्रेक देते, ताकि बच्चा क्या हो थोड़ा, कई टीचर देखते हैं जैसे घंटी लगा तुरंत घुस गया, है ना। ठीक है, सम आर द रूल रेगुलेशन ऑफ आवर स्कूल एंड वी फॉलो देम, लेकिन हमारे अनुसार थोड़ा सा ब्रेक उसको देना चाहिए, ताकि उसका माइंड, अगर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं एकाएक तुरंत संस्कृत की घंटी है तो उसको कन्वर्ट होने में थोड़ा समय लगता है। और ठीक आप चले गए, हो सकता है नहीं जाएंगे तो थोड़ा बच्चे कुछ बदमाश होते हैं, चले गए तो उसको इसी प्रकार से थोड़ा क्रिएट माहौल करने के लिए संस्कृत में ही कोई चीज़ ऐसा बोल दीजिए, कोई चुटकुला बोल दीजिए, किसी को कोई चीज़ बताने बोल दीजिए, चलो जी इंग्लिश में क्या पढ़ा था, तो क्या होगा कि बच्चा फिर से अपने माहौल में ढल जाएगा। नहीं तो फिर हम गए और सीधे पढ़ाना शुरू कर दिए, दिस इज़ नॉट द इफेक्टिव क्लास, वो क्लास हमारा इफेक्टिव नहीं बन सकता। तो गिव स्टूडेंट्स ए ब्रेक, हम लोग को चाहिए कि हमेशा ब्रेक लेना बच्चों को देना चाहिए। बड़े बड़े लोग भी ब्रेक लेते हैं, कभी कभी हम लोग जाते हैं कहीं, डॉक्टर साहब हैं नहीं, वो तो ब्रेक पर गए हैं, है ना। कहाँ गए हैं ब्रेक पर भाई, तो चल गए गोवा घूमने के लिए। हाँ होता है, क्यों, क्योंकि इतना स्ट्रेस है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस इन हिज माइंड, इतना स्ट्रेस उन लोगों के पास है कि थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है। 10 दिन के लिए चले गए, घूम फिर के अपना आ गए। जितेश जी काफ़ी हंस रहे हैं, ये भी कभी कभी लगता है ब्रेक में जाते हैं क्या। टिप्स नंबर 7, बी सोशल। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ टू बी ए सोशल पर्सन। ये कहावत है कि नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, ये ज़रूरी होता है। तो हम लोगों को सोशल बनना चाहिए। कभी कभी देखते हैं हम लोग को व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, लेकिन वो सक्सेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो सोशल नहीं है, सिर्फ अकेले मेहनत करते जा रहा है आगे। कोई व्यक्ति बहुत कम मेहनत करता है, लेकिन क्या लक थोड़ा सा सोशल बन गया तो कभी ना कभी उसको काम आ जाता है। सो बच्चों को भी हम लोग को सोशल काम करने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। कभी कभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी हम लोगों को कराते रहना चाहिए, जिससे कि उसमें सामाजिकता का भाव पैदा हो और बच्चा जो सो समाज में जीना सीख जाए। क्रिएट इन्वायरमेंट फॉर द स्टूडेंट टू इंटरेक्ट विथ देयर पीयर्स, है ना। हमेशा पॉजिटिव थिंग बताकर उसको हम लोगों को चाहिए कि बी सोशल व्यक्ति बनाए, सामाजिक व्यक्ति उसको बनाना चाहिए, ताकि वो अपने एटमॉस्फेयर में उस प्रकार रह जाए। Look at this picture. What this picture indicates us? Smile. Happiness. क्यों ये हैप्पीनेस क्यों है? क्योंकि बहुत अच्छे environment। Please tell me. Please stand up and tell some things about this picture. The background of the picture shows that the place where the person is very decent environment, and greenery is there. और जिते किशोर सर
चलिए ठीक है, यस, थैंक यू मैम। मैम भी हम सही बोली। ये जो सीन है, ये जो जगह है काफ़ी प्लीजेंट है, ग्रीन इकोनॉमी हम लोग इसको कर सकते हैं। कभी भी हम लोग को जब मन थोड़ा सा खराब लगे, सुबह सुबह हम लोग देखते हैं लोग योगा में जाते हैं, समबडी गो टेक द योगा इन द गार्डन। क्यों गार्डन में ही क्यों जाना है योगा करने? घर में भी तो उछल कूद सकते हैं। लेकिन देखिएगा कि सुबह सुबह में सब लोग थोड़ा सा गार्डन वगैरह में, रोड में घूमते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि वहाँ का सुबह का जो वातावरण होता है, द एटमॉस्फेयर ऑफ द मॉर्निंग शोज द डेज, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है ना, प्लीजेंट होता है, शांत होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं ये जो सीन हमारा है ये काफ़ी शांत है। और जब हम लोग शांति में जब जाते हैं तो क्या होता है, इंसान दो तरह से खुश होता है, एक अंदर से खुश होता है और एक दिखावे के लिए खुश होता है। जैसे अगर अभी किसी को कोई जोक बोल दिया तो वो खुश हो गया, तो वो अंदर से खुश नहीं हुआ, चलो जोक आया सो खुश हो गया। लेकिन कभी कभी इंसान देखिएगा कि बैठ के भी अकेले बैठा हुआ इसी तरह से अकेले बैठा और हंस रहा है, उस समय इंसान क्या होता है, अंदर से खुश होता है ना। वो रियल खुशी उसी को हम लोग कहेंगे जब वो अकेले में इंसान है और मुस्कुरा रहा है, तो वो पागल नहीं है, वो पागल नहीं है, वो क्या है, वो अंदर से खुश हो रहा है। और अंदर से खुश होने के लिए दो तीन चीज़ें चाहिए, या तो वो कभी अच्छा सक्सेस कर जाए तो, या तो जो उसकी जो कामना है कभी कभी पूरा हो जाता है, या कभी बीते बाद जैसे हम लोग पढ़ के निकल गए, कोई दोस्त मिल गया उधर से गुजर रहा है तो उसको देख के हम लोग खुश हो जाते हैं, अरे ये तो क्लास में ऐसे कर रहा था। तो इस तरह के आप बीती भी जो है हम लोगों को कभी कभी स्टूडेंट्स को बताते रहना चाहिए, जिससे कि उसका भी वही नेगेटिव थिंकिंग हम लोगों के लिए पॉजिटिव थिंकिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ टू बी ए पॉजिटिव पर्सन। हमारे स्कूल में मनोज सर हैं, ऑलवेज भी पॉजिटिव, प्रदीप सर ऑलवेज भी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं, सर नेगेटिव नहीं बोलना है। तो जीवन में अनेक परिस्थितियां हमारे पास आता है जिसको कि अगर हम लोग पॉजिटिव ढंग से हैंडल करें, पहले भी बताए हैं, तो वो खुशनुमा हमारे पास हम लोग बिता सकते हैं। What are the importance of a positive thinking? Anybody say some lines about what are the importance of positive thinking? Pradeep sir, please tell me. Increase our immune system. Immunity system. Okay, thank you. Sir, please tell some lines about positive. What are the importance of positive thinking? The question is here, what is the importance of positive thinking? Yes. The word positive gives us different type of meaning, and each and every meaning of this word is beneficial for us. If we do something and we think only its positive side, then it will be very good. But a person who only thinks positive side only, maybe he will not succeed in his life. But in the prospect of health, positive thinking makes strong our immunity system. Secondly, it tells us that if you are sick, if you are ill, then someone said that this very disease will very crucial, and I think it is the last disease of your life. If one person says, another person also says, and in this time if you are thinking about this disease, about the result of this disease, then you will also take it. But if a person comes to you and tells you nothing is the matter, this disease is very common, and a number of persons have become cured, recovered from this disease, so there will be no problem. So positive thinking and the surroundings of our, if gives positive thinking, then we will be positive. And a sick person, an ill person,
will be cured, will recover due to positive thinking. But everybody says that this very disease is the last disease of your life. Then you will think and think again that such many persons are saying such type of, it means it is the last stage of my life. So we should not only think that he will be cured, but also we also say him that such type of disease is very common in this time because it will give him energy. So it is a source of energy also. Positive thinking is a source of energy also. It makes strong our immunity system. Two are the profits, benefits of positive thinking. Thirdly, you will be accepted or rewarded by the society if you think positive. If you think positive, then you will be honored by the society. Suppose that he is present before you, and someone said that it will only 5 kilo. But you are saying that no, it is more than 5 kilo, and gives result, it will give 6 kilo. So positive thinking will always be good, and always it's in our favor. So we must think positive, and not for oneself, but also we must think for everyone that this person is positive. Okay, that's all, sir. Thank you, sir. Positive thinking. Positive thinking is most important in our life. You define it very well. आप सही बोले कि पॉजिटिव थिंकिंग जो सो हमेशा अच्छा होता है. इट इंक्रीजेज आवर इम्यूनिटी सिस्टम. इट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, है ना. हाँ, इट इफ यू थिंक पॉजिटिव देन इट रिड्यूस stress, because we know it very well that there are different types of stress in our mind or in our life. So positive thinking can change our life. पॉजिटिव थिंक हम लोग का जीवन को भी जो है आगे बढ़ाता है और हमारा जो है सो सोच भी अच्छा होता है. हम लोग पॉजिटिव लोग के साथ रहेंगे. इफ़ वी हैव ए पॉजिटिव फ्रेंड्स देन वी थिंक पॉजिटिव. इफ़ वी हैव ए नेगेटिव फ्रेंड्स देन वी थिंक नेगेटिव. ये ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि बैड थिंग्स हम लोग को ज़्यादा इंटरेक्ट करता है. 10 लोग अच्छा बात कर रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक आदमी किराने में किसी का शिकायत बतिया रहा है तो वहीं जाएंगे, है ना. यस सर, टेल मी. Okay. Positive vibes keeps you always alive. Positive what? Positive vibes Why keep you always alive. हमको वाइफ सुनाई दी. हमको वाइफ सुनाई दी. हम लोग एक इसलिए पॉजिटिव थिंक अच्छा है. हम लोग एक तो फिल्म देखे होंगे, आनंद, द पिक्चर ऑफ शशि कपूर, नहीं राजेश खन्ना, सॉरी, अमिताभ बच्चन है राजेश खन्ना. वो आनंद पिक्चर से ही हम लोगों को ये पता चल जाता है कि पॉजिटिव थिंक, हाउ पॉजिटिव थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. उसको बीमारी था, लेकिन फिर भी कैसे वो अपना जीवन जो सो उसी तरह से बिताया कि लग ही नहीं रहा था कि. उसका एक डायलॉग बहुत अच्छा है, हमको याद नहीं आ रहा है, जब कोई जानते होंगे तो बताएंगे. नहीं उसका नहीं है ना. वो तो पॉजिटिव जिंदगी और मौत, इंसान की जिंदगी और मौत उसी में लिखा है. आनंद, द पिक्चर ऑफ आनंद ऑफ, है ना, बहुत अच्छा हम लोग उसमें देखेंगे. उससे ठीक है, याद याद नहीं है तो ठीक है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं. हाँ, तो उससे दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, है ना. पॉजिटिव थिंक अगर हम लोग रखते हैं तो इस प्रकार का इम्पैक्ट हमको पता चलता है. सर हम लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं हम लोगों को. दिस इज ऑल्सो द राइट कोटेशन. दिस इज इम्पॉर्टेंट, है ना, टॉपिक. उपलब्धियों का जश्न मनाना. इफ़ वी गोट सम थिंग्स देन वी हैव टू सेलिब्रेट इट इन ए वंडरफुल वे. जैसे भारत अभी चैंपियन ट्रॉफी जीता,
तो क्या हुआ, अप्रिसिएट हमारे प्रधानमंत्री भी किए सारे, और उसका जश्न भी मनाया गया। T20 वर्ल्ड कप जीता, उसका भी जश्न मनाया गया। तो उसी प्रकार से इफ़ यू डू समथिंग्स गुड इन आवर लाइफ देन वी सेलिब्रेट इट। जैसे हम लोग अभी जन्मदिन मनाते हैं, अपना शादी का सालगिरह मनाते हैं, श्वेता दीदी जी का हैप्पी बर्थडे है ना, तो हम लोग उसको भी मनाए। अर्लियर हम लोग उनको शुभकामनाएँ दिए, थोड़ा सा छोटा ही मनाए लेकिन मनाए। इसी प्रकार वी हैव टू सेलिब्रेट एवरी थिंग्स, वी हैव टू सेलिब्रेट एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। ये सब अगर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे देन वी फील हैप्पी। और हम लोग क्लास में बच्चों को भी इसी प्रकार से बोलेंगे कि कोई हर पल को हम लोगों को जीना है, देन द एटमॉस्फेयर ऑफ आवर क्लास लुक्स हैप्पीनेस। तो ये हमारा क्या है, हमारा क्लास का एटमॉस्फेयर भी जो सो अच्छा रहेगा। सो वी हैव टू सेलिब्रेट ऑल द टाइम। Earlier we have said you that always appreciate the students. In if any student do something, then we have to appreciate by our words, or we give some prize like pen, pencil, toffee, etc. It is important टॉपिक अपने छात्रों को जानने के लिए कुछ समय दें। इन द अर्लियर आई ऑल्सो सेड यू दैट ट्राई टू नो योर स्टूडेंट्स। इफ़ यू आर ए क्लास टीचर और ए सब्जेक्ट टीचर, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर अस टू नो द स्टूडेंट्स, व्हाट इज गोइंग इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के माइंड में क्या चल रहा है उसके बारे में जानना, उसके बाद ही हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। तो क्या होगा कि हम लोग का पढ़ाई जो सो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और हमारा क्लास जो सो स्ट्रेस फ्री होगा। तरह तरह की बातें उनके बारे में पहले जान लेंगे तो हम लोग व्यर्थ की चिंता ना करें। यस, दिस इज राइट। डोंट थिंक डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। क्या हो रहा है उसके बारे में नहीं सोचना है, क्या होने वाला है उसके बारे में भी नहीं सोचना है। दिस इज द कोटेशन ऑफ भगवान श्री कृष्ण, है ना, गॉड श्री कृष्ण। उनका एक कोटेशन आता है, बहुत अच्छा कोटेशन है, वो लिखे हैं, व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो। यस, दिस इज राइट। व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो और व्यर्थ में ही डरते हो। क्योंकि अगर हम लोग किसी चीज़ का चिंता करेंगे कौन क्या कर रहा है उससे हमको क्या मतलब है। कभी कभी इंसान का ये स्वभाव है किसी दूसरे की खुशी में अपने आप को गम में रखना। दूसरा खुश है इसलिए हम गम में, कह रही क्यों खुश है भाई, अरे यार अपना काम से तो फुर्सतें नहीं है। लेकिन फिर भी कई लोगों की आदत होता है, फलना आज ये आदमी जो सो आज लेट से आया है, अरे लेट से आया तो वो समझेगा ना, तो हम का है अपना खून जलावें, है ना। या उसको जो सो आज घूम रहा है इधर का है, अरे घूम रहा है तो वो अपना घूम रहा है अपना, उससे हमको क्या मतलब, हम अपना काम करें। तो व्यर्थ का हम लोग चिंता करके अपना स्ट्रेस खुद लेते हैं, है ना। यस, टेल मी। अगर कोई बॉम्ब प्लांट कर रहा है यहाँ पर तो हाँ, चिंता नहीं करेंगे, चिंता करेंगे तो पॉजिटिव थिंग। इससे पहले आपको बताए ना, चिंता नहीं करेंगे कि हम हाँ आपका बात हम मान लिए, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग व्यर्थ का नहीं हुआ। कहने का मतलब वो थोड़ा सा तो जानकारी हम लोगों को होना चाहिए। लेकिन अगर हम जान रहे हैं, जैसे हम लोग कब होता है, हम लोग जान रहे हैं फिर भी उसका चिंता कर रहे हैं, तो उससे हम लोग का क्या ब्लड प्रेशर हाई होगा, शुगर होगा, शरीर कमज़ोर होगा और फिर हम लोग डॉक्टर के यहाँ दौड़ते रहेंगे। तो व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो और व्यर्थ में ही डरते हो। तुम्हें कौन मार सकता है ना। आत्मा ना पैदा होती है ना ही मरती है। दिस इज राइट। हमारा आत्मा जो सो न पैदा होता है ना मरता है। जो हुआ वो अच्छा हुआ। दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ दिस कोटेशन। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। यस, जो होगा वह भी अच्छा होगा, और जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है ना। जो हो गया वो भी अच्छा हो गया, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। ये जो सो कोटेशन, इफ वी फॉलो दिस टाइप्स ऑफ कोटेशन देन वी सक्सेस इन आवर लाइफ एंड क्रिएट द हैप्पीनेस इन द क्लासरूम। सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेंटेन द रूल रेगुलेशन एंड बी हैप्पी इन द क्लासरूम। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। हाँ, प्लीज टेल मी। डोंट टेक स्ट्रेस, थिंक पॉजिटिव, देन वी फील हैप्पी। यस।
First of all, I want to thank our HOD sir, that means Mr. Neeraj Kumar sir, and also I thank to principal sir, vice principal sir, colleagues, and the teachers come from the DAVR school also. He was telling about that is the happy teachers creates happy classroom. First of all, he told us that we are the so man, and for the making the stressful campus, we should keep a smiley face, but it is not necessary to keep always a smiling face. Sometimes it's going to be wrong. Whenever you enter your classroom, then you are honor of the class. This is a main word we should keep in our mind, and it is our duty to create happy classroom, and we should live happy. That means a happy teachers also develop a good habit, discipline, and make them happy and healthy to a student also. We should celebrate happy moment of our life. To make the class happy, we should take the student outside the classroom, play the music, motivate the student to keep the happy. And the last point from my side, a teacher should be happy, self-confidence, and motivated also to make the happy classroom. Once again, to thank you to all the teachers, principal sir, vice principal sirs, and our resource person. Thank you to again.